and we're still studying the chapter 17 of Levinson 15th edition. So if any of you is unable to understand any point, please leave a question in the chat box and I'll answer at the end of the lecture. So starting with Clostridia. Okay, so these are strict anaerobes, gram-positive rods as we know. And last time we discussed that gram-positive rods are further classified into spore-forming and non-spore-forming rods. And this group belongs to the spore-forming category. They produce powerful exotoxins and cause different diseases in humans. The main habitat in all cases is soil. So the four species of Clostridia that are commonly causing disease in humans includes the Clostridium botulinum, Clostridium perfringens, Clostridium tetani, and Clostridium difficile. So now how are these four classes differentiated? Based on the location and shape of the spores, pathogenicity to the human beings, and certain biochemical reactions. So here you can see in this diagram that different location of the spores and different appearance of the spores is clearly shown. This is the schematic diagram showing different types and arrangement of the spores and Clostridia. So in the first picture, you can see the spherical and terminal spores of Clostridium tetani comparable to the oval and terminal spores of Clostridium botulinum. And in the third picture, you can see the oval and subterminal spores and somewhat square endings of the rods. Okay, this is Clostridium perfringens. Next is the culture characteristics. These are obligate anaerobes. They grow well on the blood agar and meat broth. And incubation is done in candle jar, anaerobic jar, and anaerobic chamber. So this is a picture showing you an anaerobic candle jar and anaerobic jar. So you can see this anaerobic jar in the microbiology lab, and it's working here. Okay. So starting with the Clostridium tetani, the name of disease is tetanus. And two toxins are usually formed by this bacterium. One is tetanospasmin and the other is tetanolysin. Okay. The site of action is generally the nerve endings and it results in spasmodic contractions of the muscles, leading to lockjaw, tetanus neonatorum. Okay, now we are going to discuss them separately in a little detail. So the spores, they are widespread in soil and they enter the wounds. Okay, they enter the body of the person through the wound site. For example, where a nail penetrates the foot. तो इसमें ये example दी हुई है a rusty nail that penetrates the foot of a person, and then he or she develops after a few hours develops the symptoms of lockjaw and arching of back and things, other things that we're going to discuss. And other portals of entry are skin popping. What is skin popping? It is a technique which is used by drug addicts to inject the drugs into the skin. So they are not injecting them intravenously or intramuscularly, but in skin popping, the drug injections are taken subcutaneously or intradermally. Okay. Then neonatal tetanus, it is a common condition that is found in the developing countries, and the organism enters through a contaminated umbilicus. कि जैसे आपको पता है कि विलेजेस में और कुछ रिमोट एरियाज में ये प्रैक्टिस है कि व्हेन दे कट द अम्बिलिकल कॉर्ड ऑफ द बेबी दे अप्लाई काउ डंग ऑन इट। कि इसके साथ उनकी कोई अपनी थिंकिंग है या फॉल्स असम्पशन आप कह सकते हैं, मिथ्स हैं कि उसमें कुछ हीलिंग पावर होती है जिसकी वजह से बेबी जल्दी हील कर जाएगा। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी जो सॉइल में स्पोर्स होते हैं या जो स्पोर्स इसके थ्रू एंटर हो जाते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर, सो वो इस बेबी के लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये सर्कमसिजन वुंड्स के थ्रू भी एंटर हो सकता है बिकॉज ऑफ द लेस हाइजीनिक प्रैक्टिसेस।
okay, due to lack of awareness. Then how when they enter the body, the germination of the spores is favored by the necrotic tissue, okay, and poor blood supply in the wound. So what happens when the tetanus spores they enter the body? First we will again see the transmission spores. आपने देख लिया soil में होते हैं, ठीक है. These are the different ways जैसे ये body में enter हो सकते हैं. For example, a rusty nail penetrates person skin, ठीक है. इसके अलावा कोई road traffic accident हो सकता है जिसमें road side से spores body के अंदर enter हो गए. कोई भी open wound, contaminated wound हो सकता है, उसके through enter हो सकते हैं. यहाँ पे आपको in the left lower quadrant of the picture you can see certain marks. ठीक है, ये स्किन पॉपिंग के मार्क्स हैं जो मैंने आपको बताया कि ड्रग एडिक्ट समटाइम्स ये रूट यूज करते हैं ड्रग इंजेक्शन के लिए, दैट इज सबडर्मली और इंट्राडर्मली और सबक्यूटेनियसली, ठीक है. एंड इन द लास्ट पिक्चर यू can see, so umbilical cord, if it is cut with unsterilized instrument or something like cow dung or some other layman thing is applied on it, so spores can enter from the umbilical cord as well. और इसके साथ हमने एक और कंडीशन भी पढ़ ली कि सर्कमसिडेंट वुंड्स या कोई भी और ओपन वुंड्स उनके थ्रू भी एंटर हो सकते हैं. नेक्स्ट इज पैथोजेनेसिस. आज हम थोड़ा सा तेज इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी जो नंबर ऑफ स्लाइड्स हैं क्लॉस्ट्रिडियम के लिए वो थोड़ी सी ज़्यादा है. अगर कहीं भी आपको लगे कि आपको लेक्चर सही से समझ नहीं आ रहा तो आप बता दीजिए, मैं वो स्लाइड आपको दोबारा रिवाइज करवा दूँ, ठीक है. अदरवाइज थोड़ा सा हम आज फास्ट चलेंगे. ओके, तो नाउ पैथोजेनेसिस ऑफ टेटनस. टेटनोस्पैज्मिन इसके टॉक्सिन का नाम है, एक्सोटॉक्सिन है, ठीक है. और जो स्पोर्स एंटर होते हैं बॉडी में वो टिश्यू में जाके या वोन साइड पे जाके वेजिटेटिव सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं. अब जब टॉक्सिन जब एक दफ़ा बन गई है टिश्यू के अंदर तो इट विल बी कैरिड इंट्राएक्सोनली, ठीक है, टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और वहाँ जाके ये बाइंड करेगी गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर्स के साथ, ब्लॉकिंग द रिलीज ऑफ इनहिबिटरी मीडिएटर्स. तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर रिवाइज करें, उसमें याद करें कि इनहिबिटरी मीडिएटर्स कहाँ पे जाके एक्ट करते थे और उनको ब्लॉक कर दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है. इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स का क्या काम है कि जो मसल कंट्रैक्शन है उसको उन्होंने रोकना है, ठीक है. तो अगर हम इनहिबिटरी मीडिएटर्स किसी वजह से रोक दें दैट मीन्स के मसल कंटिन्यूसली इन स्टेट ऑफ कंट्रैक्शन रहेगा, ठीक है. तो tetanus toxin has one antigenic type and there is therefore one antigenic type of toxin toxoid in the vaccine against the tetanus. So ये हमारी एक आसान सी डायग्राम है, सिंप्लीफाइड सी. आपकी बुक में इसके साथ डायग्राम नहीं बनी हुई तो अगर आप चाहें तो आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है. और इसमें बहुत इजीली बताया हुआ है कि टेटनस टॉक्सिन का क्या मैकेनिज्म है. सो यू कैन सी क्लॉस्ट्रिडियम टेटेनाई, ठीक है. और क्लॉस्ट्रिडियम टेटेनाई ने ये अपनी टॉक्सिन प्रोड्यूस की है जिसका नाम है टेटनोस्पैज्मिन. अब ये जाके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एक्ट करेगी और यहाँ पे जो एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर है या एसिटाइलकोलिन है ये वेसिकल्स फ्यूज होके ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में यहाँ पे साइनेप्स पे रिलीज होते हैं और इनकी रिलीज को ये रोक देगी. इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर सॉरी एसिटाइलकोलिन की रिलीज को नहीं ब्लॉक करेगी, ये वैसे रिलीज हो रही है. ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो यहाँ पे गामा और ग्लाइसिन है ये उसको ब्लॉक कर देगी ताकि एसिटाइलकोलिन रिलीज होती जाएगी, ठीक है. मसल इन स्टेट ऑफ कंट्रैक्शन रहेगा लेकिन इनहिबिटरी ट्रांसमीटर गामा और ग्लाइसिन यहाँ से रिलीज नहीं हो सकेंगे. क्योंकि ये रिलीज नहीं होंगे इसलिए कंट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन नहीं हो सकेगी, ठीक है. सो देयर विल बी इनहिबिटरी ट्रांसमीटर रिलीज ब्लॉक leading to continuous stimulation by excitatory transmitter. excitatory transmitter कौन सा था? एसिटाइलकोलिन. एसिटाइलकोलिन के ये वेसिकल्स हैं, ये फ्यूज हो रहे हैं, ये साइनेप्स में रिलीज हो रहे हैं और इनकी वजह से मसल स्टेट ऑफ कंट्रैक्शन में चला जाएगा. लेकिन गाबा और ग्लाइसिन जिसको इस टॉक्सिन ने ब्लॉक कर दिया है वो रिलीज नहीं होंगे तो मसल रिलैक्स नहीं हो पाएगा, ठीक है. इसको हम कहते हैं स्पास्टिक पैरालिसिस, ठीक है. दिस इज अ स्पेसिफिक टर्म व्हिच इज यूज्ड फॉर टेटनस डिजीज, इसको कहते हैं स्पास्टिक पैरालिसिस. So clinical features क्या है? As a result of blocking the gamma and glycine and the muscles are in continuous spastic state, ठीक है. तो अब इससे क्या होगा, कौन से मसल्स में ये आपको स्ट्रांगली नजर आएगा? दैट इज द जॉ, ठीक है. सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि स्पेसिफिक क्लिनिकल फीचर्स में जॉ ट्रिस्मस आ जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंट्रैक्शन हो रही है जॉ मसल्स की, ठीक है, और बहुत रिजिड है,
ठीक है। और जो इनहिबिटरी ट्रांसमीटर है जो गाबा ग्लाइसिन है वो रिलीज नहीं हो रहे ताकि ये अब ये मसल्स रिलैक्स नहीं हो सकते। तो पेशेंट का जॉ लॉक हो जाएगा, दैट मीन्स ही वोंट बी एबल टू ओपन हिज माउथ, और वो ऑब्वियसली माउथ ओपन नहीं कर सकेगा तो खाना वगैरह भी नहीं खा सकेगा, ठीक है, विच प्रिवेंट्स द माउथ फ्रॉम ओपनिंग। एंड कैरेक्टरिस्टिक ड्राइनेस व्हिच इज नोन एज राइजस सार्डोनिकस, ये एक कंडीशन है जो कि प्रोड्यूस हो जाएगी। इसके साथ इस पेशेंट की जो रिफ्लेक्सेस हैं जनरली वो भी एक्सैचुरेटेड होंगी, ठीक है। तो बीइंग डेंटिस्ट्री स्टूडेंट्स हमारे लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेशेंट आपके पास प्रेजेंट कर सकता है विद दिस कंडीशन के उसका जो है ना वो माउथ लॉक हो गया, मे बी कोई अटेंडेंट उसको लेके आए कि ये इसका जॉ लॉक हो गया एंड इज अनेबल टू ओपन हिज माउथ। सो दिस इज अ टिपिकल कंडीशन कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेशेंट की जो है ना यहाँ पे जॉ लॉक होने की वजह से एक टिपिकल किस्म की स्माइलिंग फीचर्स आ गया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ स्माइल ऑफ प्लेजर, ठीक है। ये उसकी जो है आप देख सकते हैं एक्सप्रेशन से आपको पता चल रहा है कि वो बहुत तकलीफ में है, लेकिन उसकी जो अपीयरेंस है वो ऐसी है कि आपको एक ग्राइमियस या स्माइल नजर आ रही है। इस कंडीशन का एक स्पेसिफिक नाम है जिसको कहते हैं राइजस सार्डोनिकस, इसमें मसल स्टिफ हो गए हैं ड्यू टू टेटनस टॉक्सिन। नेक्स्ट इज क्लिनिकल फीचर्स में ओपिस्टोटोनस। ओपिस्टोटोनस में क्या होता है, इट इज अ प्रोनाउंस्ड आर्किंग या आर्च आप कहते हैं या आर्किंग कहते हैं, ठीक है, ऑफ द बैक ड्यू टू स्पैज्म ऑफ द स्ट्रॉन्ग एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द बैक, ठीक है। और ये भी एक कॉमन फीचर है टेटनस का। इसके साथ साथ रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो जाता है, और अगर रेस्पिरेटरी फेलियर में पेशेंट चला जाता है तो डेफिनेटली देयर वुड बी हाई मोर्टेलिटी, ठीक है। सो हम यहाँ पे देखते हैं इस डायग्राम में आपको पता चल रहा है ओपिस्टोटोनस या आर्किंग ऑफ बैक का क्या मतलब है, ठीक है। यहाँ पे देखें बिल्कुल इसकी बैक जो है वो मसल स्टिफ होने की वजह से या स्पास्टिक पैरालिसिस में जाने की वजह से ये मसल इसकी इस तरह से अपेयर होते हैं। Then we go to the lab diagnosis. Basically आप इसको लैब में कल्चर नहीं करते हो, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स आर रेयरली आइसोलेटेड फ्रॉम द बोन साइड, ठीक है। और This gives the organism characteristic appearance of the tennis racket। अच्छा, इसमें टर्मिनल स्पोर होता है जैसे कि हमने पढ़ा, तो इसकी वजह से इसकी एक अपीयरेंस होती है टेनिस रैकेट शेप की। अच्छा बच्चों, अगर किसी पेशेंट का ओपन वुंड है और उसमें टेटनस के फीचर्स भी हैं, तो लेट्स से अगर आप वुंड टिश्यू को ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोबायोलॉजी लैब में, तो आपको उसमें कोई भी स्पोर्स नजर नहीं आएंगे। जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था बेसिलस के केस में कि स्पोर क्यों नहीं होता वुंड के अंदर, बिकॉज वुंड के अंदर जो है वो डेड नेक्रोटिक टिश्यू बहुत ज्यादा होता है और बैक्टीरिया को फीड करने के लिए या ग्रो करने के लिए वही कंडीशंस चाहिए होती हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट, टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन या टेटनस एंटीटॉक्सिन यूज की जाती है टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। इसके अलावा जो एंटीबायोटिक्स है उसका रोल कुछ खास हमें सर्टेनली नहीं पता, अगर यूज की जाए तो मेट्रोनिडाजोल यूज की जाती है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि ये एनारोबिक इन्फेक्शंस के लिए यूज की जाती है। इसके अलावा पेनिसिलिन जी भी दी जा सकती है, लेकिन हमें कोई इतना हतमी रोल नहीं पता। तो बेसिकली इसके ट्रीटमेंट में जो इम्पोर्टेंट रोल है वो एंटीटॉक्सिन या इम्यूनोग्लोबुलिन का है, ठीक है। इसके साथ साथ आपने सपोर्टिव ट्रीटमेंट पेशेंट को देना है या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है, जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि वो एयर पे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है इस पेशेंट का, जो कि उसके सिम्टम्स में शामिल है किसी क्लिनिकल फाइंडिंग्स में ये चीज़, तो आपने एयर भी सिक्योर रखना है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सपोर्ट की अगर पेशेंट को जरूरत है तो आपने वेंटिलेटर अरेंज करना है। इसके अलावा आपने जो भी मसल स्पैज़म्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए आपने बेंजोडाइज़ेपिन्स दी है। ओके, अब जो है टेटनस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ इसकी प्रिवेंशन है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट हैं, डेफिनेटली आपको इसमें से क्वेश्चन आ सकता है अबाउट द एक्शन ऑफ द टेटनस टॉक्सिन, या आपको कह सकते हैं कि पैथोजेनेसिस ऑफ टेटनस लिखें, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपको इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, टेटनस चूँकि एक ऐसी कंडीशन है जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, तो इसलिए ये जो हमारा EPI शेड्यूल है एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, जो WHO की तरफ से रिकमेंडेड होता है कि एवरी चाइल्ड शुड हैव दीज एटलीस्ट दीज वैक्सीनेशंस ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, उसमें भी टेटनस को शामिल किया गया है। तो एट द एज ऑफ 6, 10 एंड 14 वीक्स 3 दफा टेटनस की वैक्सीनेशन की जाती है छोटे बच्चों में, ठीक है। और ये वैक्सीन अमूमन कॉम्बिनेशन में यूज की जाती है। इसका कॉम्बिनेशन बनता है डिप्थीरिया परट्यूसिस
के साथ, ठीक है, 2 वैक्सीन के साथ कंबाइंड होती हैं। और इसके अलावा इसके जो है ना बूस्टर्स भी लगते हैं, ठीक है, इन चाइल्डहुड भी, और उसके बाद एवरीडे यूज। अच्छा, इसके अलावा टेटनस की जो वैक्सीनेशन है, चूँकि हमारी जनरल पॉपुलेशन में भी हमें अमूमन आइडिया नहीं होता कि किसका वैक्सीनेशन स्टेटस क्या है, या किसी ने बूस्टर्स लगवाए हैं या नहीं लगवाए। तो जो प्रेग्नेंट पॉपुलेशन होती है उसमें भी टेटनस की वैक्सीनेशन की जाती है हमेशा, जिसके लिए एक रिजीम जो यूज़ की जाती है वो 7th और 8th मंथ में 2 इंजेक्शन लगाए जाते हैं, एटलीस्ट 4 to 6 वीक्स अपार्ट, ठीक है। जैसे कि आपने इसमें देखा 6, 10, 14 वीक्स में, इसमें भी 2 डोजेस के बीच में 4 to 6 वीक्स का गैप रखा गया था, ठीक है। इसी तरह प्रेगनेंसी में भी लगाई जाती हैं। और जो रिसेंट WHO की रिजीम्स हैं उसके मुताबिक फर्स्ट प्रेगनेंसी में 5 टाइम्स टेटनस की वैक्सीनेशन की जाती है, तो फिर वो लाइफ लॉन्ग उस पेशेंट के लिए सफिशिएंट होती है। बट सिंस इन आवर सेटअप हम लोग ये मॉनिटर नहीं कर सकते कि कौन सा पेशेंट जो है उसने लगवाई है और नहीं लगवाई, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसे वैक्सीनेशन रिकॉर्ड मेंटेन रखने का इतना ट्रेंड नहीं है जो कि आइडियली होना चाहिए। सो इस वजह से जो है ना अमूमन हर पेशेंट में हर प्रेगनेंसी में लगाया जाता है। सो बीइंग डेंटिस्ट्री स्टूडेंट शायद आपका इतना ज़्यादा ऐसे लेख नहीं होगा, बट यू शुड नो कि टेटनस की वैक्सीनेशन किन किन लोगों में की जाती है, बच्चों में, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडीज में, और कोई भी ऐसा बंदा जिसका वैक्सीनेशन स्टेटस अननोन है उसमें भी की जा सकती है। इन केस ऑफ ट्रॉमा, किसी पेशेंट को ओपन वुंड आया है, इमरजेंसी में वो पेशेंट आता है, तो आप उसका वैक्सीनेशन स्टेटस पहले पूछेंगे। अगर उसको टेटनस का बूस्टर नहीं लगा हुआ पिछले 5 साल में, टेटनस का कोई इंजेक्शन नहीं लगा हुआ, तो आप इसको वैक्सीनेट करते हैं। ओके, अच्छा, इसमें से एक और ये फेवरेट क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसमें है प्रिवेंशन में कि पेशेंट अंडरगोज ट्रॉमा, ठीक है, और उसका वुंड जो है उसको आप कैसे ट्रीट करेंगे आप, ठीक है। एक पेशेंट आया है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, ओपन वुंड है, ठीक है, आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उसको टेटनस ना हो जाए, आप प्रिवेंट करना चाहते हैं। अब आप वुंड को कैसे ट्रीट करेंगे? सबसे पहले आपने वुंड को थॉरली क्लीन करना है, डिब्राइड करना है। डिब्राइडमेंट का क्या मतलब है? जो भी डेड या निक्रोटिक टिश्यू है वो आपने उसमें से रिमूव कर दिया अंडर एसेप्टिक कंडीशंस। फिर टेटनस टॉक्साइड बूस्टर आपने इस पेशेंट को जरूर एडमिनिस्टर करना है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ग्रॉसली कंटेमिनेटेड वुंड के केस में आप कैसे ट्रीट करेंगे। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो कभी ना कभी या तो यूएचएस में पूछे गए हैं या फिर आपके हाउस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपको बताने का मकसद ये है कि आपको टॉपिक पढ़ते हुए पता हो कि आपने किन चीज़ों पे ज़्यादा स्ट्रेस करना है और इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। सो इन केस ऑफ अ ग्रॉसली कंटेमिनेटेड वुंड आप क्या करते हो? सबसे पहले इसी तरह से आप उसको क्लीन करेंगे, डिब्राइड करेंगे। उसके बाद जो टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन भी देनी है इस पेशेंट को आपने, और टॉक्सॉइड बूस्टर भी देना है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो एट द साइट ऑफ वुंड वहाँ पे इंजेक्ट की जाएगी और ये पैसिव इम्यूनिटी क्रिएट करेगी बॉडी में, क्योंकि ये प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज हैं अगेंस्ट टेटनस, ठीक है। अच्छा, और जो टॉक्सॉइड बूस्टर है वो क्या करेगा? इट विल टेक सम टाइम टू डेवलप द एंटीबॉडीज बाय द बॉडी इटसेल्फ। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि तकरीबन 7 to 10 डेज लगते हैं एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर फॉर्म होने में, ठीक है। तो जो टॉक्सॉइड बूस्टर है वो क्या करेगा? इम्यूनोजन अंदर प्रोड्यूस करेगा और बॉडी सेल्स खुद उससे एंटीबॉडीज क्रिएट करेंगे। दिस इज एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। और जो पैसिव इम्यूनिटी है उसमें क्या हो रहा है? आपने बनी बनाई एंटी बॉडीज या इम्यूनोग्लोबुलिन्स बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दी ताकि वो फौरी तौर पे टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करना शुरू करें। The administration of both immunoglobulins and tetanus toxoid at different sites in the body. अच्छा, अब एक और चीज इसमें याद रखने वाली है, जो टॉक्साइड बूस्टर है वो इंट्रामस्कुलर आप दे सकते हैं और जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो आपने एट द साइट ऑफ वुंड देनी है, ठीक है। सो एट द डिफरेंट 2 different sites in the body, it is an example of passive active immunity. इसका दूसरा नाम combined active dash passive immunity भी है, ठीक है। सो in some books it is written as combined active dash passive immunity and in some books it is written passive dash active immunity, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज के नाम है। इसके बारे में आपसे वाइवा में और थ्योरी में दोनों में पूछा जा सकता है। So now we're starting with the next one, that is Clostridium botulinum, ठीक है। It causes the disease called botulism
और स्पोर्स जो हैं इसके भी सॉइल में वाइड स्प्रेड हैं, दे कंटामिनेट द वेजिटेबल्स एंड मीट्स। और जब इन्हीं वेजिटेबल या मीट को कैन किया जाता है या वैक्यूम पैक किया जाता है विदाउट एडिक्वेट स्टरलाइजेशन, तो ये स्पोर्स इन वेजिटेबल्स या मीट के अंदर सर्वाइव कर जाते हैं एंड दे जर्मिनेट इन द एनारोबिक एनवायरनमेंट। ठीक है, सो टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड विद इन द कैन फूड एंड इट इज इंजेस्टेड फ्री फॉर्म। ठीक है, सो यू शुड बी वेरी केयरफुल इन कंज्यूमिंग द कैन फूड्स। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम प्रोड्यूस हो सकते हैं अगर इनएडिक्वेट कैनिंग है तो। ओके, ट्रांसमिट कैसे होती हैं और किन फूड्स में ज़्यादा होती हैं? जो हाई रिस्क फूड है इसमें वो अल्कलीन वेजिटेबल्स हैं, फॉर एग्जांपल ग्रीन बीन हो गए, पेपर्स हो गए, मशरूम्स हो गए। और इसके अलावा जो मीट है उसमें स्मोक फिश में ज़्यादा कॉमनली ये स्पोर्स ग्रो कर जाते हैं। So the toxin is relatively heat labile. It is inactivated by boiling for several minutes. तो अगर आपने इसको प्रॉपरली कुक कर लिया है और कैन फूड को भी आपने कुक कर लिया है, या अगर आपने कैनिंग से पहले इस फूड को इतना ट्रीट कर लिया है कि आपने इसको बॉईल कर दिया है कुछ मिनट्स के लिए, तो तब ये डीएक्टिवेट हो सकते हैं। ठीक है, सो इट डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कुकिंग। या तो जैसे आप मशरूम्स वगैरह है, इनको बीन्स हैं, तो इनको आपने कैन से निकाल के कुक कर लिया, उसी तरह से रॉ कंज्यूम नहीं किया, और या फिर आपने कैनिंग से पहले इनको ट्रीट कर लिया और प्रॉपर कंडीशंस में इनको कैन किया गया। देन टॉक्सिन, जो बोtulinum टॉक्सिन है, इट इज बेसिकली ए न्यूरोटॉक्सिन। ठीक है, ये सबने याद रखना है कि इसके सिम्टम्स जिस भी ऑर्गन्स में शो हो रहे हैं, इट इज अ न्यूरोटॉक्सिन, ये याद रखने वाली चीज है इसमें से। ठीक है, टॉक्सिन इज एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द गट and it is carried via the blood to peripheral nerve synapses where it blocks the release of acetylcholine। ठीक है, अब इसमें से ये याद रखने वाली बात है कि ऑल्दो ये गट से एब्जॉर्ब हो रही है, आपने इसको एंटेरोटॉक्सिन नहीं लिखना। इसमें सबसे ज्यादा जो गलती बच्चे करते हैं वो यही लिखते हैं कि जो बोtulinum टॉक्सिन है वो चूंकि गट से एब्जॉर्ब हो रही है इसलिए वो एंटेरोटॉक्सिन है। इट इज नॉट एंटेरोटॉक्सिन, इट इज अ न्यूरोटॉक्सिन। ठीक है, इट इज अ प्रोटीएज दैट क्लीव्स द प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड इन acetylcholine release and a toxin is a polypeptide encoded by lysogenic phase। अच्छा, जहाँ पे हमने बैक्टीरिया जनरल बैक्टीरियोलॉजी में हमने जेनेटिक्स पढ़ी थी, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि ये जो लाइसोजेनिक फेज है, ये फेज है, ये कुछ टॉक्सिन्स को इनकोड करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर एक बैक्टीरिया टॉक्सिन है, एक बोtulinum टॉक्सिन है, और इसके अलावा कुछ और बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स भी हैं। So along with the tetanus toxin, जो botulinum toxin है, it is one of the most toxic substances known on earth। ठीक है, सो ऑब्वियसली आप सोच सकते हैं कि अगर ये इतनी ज़्यादा टॉक्सिक है तो इसका मतलब ये है कि इसको भी कहीं ना कहीं बायोटेररिज्म के लिए यूज़ किया जा सकता है। सो देयर आर 8 immunological types of toxins. Type A, B and E are the most common in the human illness. Okay, so this is a simplified diagram again that is showing you the same neuromuscular junction। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले तो हम ये पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल की बात कर रहे थे जब हमने टेटनस की बात की थी। अब हम प्री साइनेप्टिक टर्मिनल की बात कर रहे हैं जिसमें एसिटाइलकोलिन वेजाइकल्स को आप देख सकते हो कि जाके फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ मेम्ब्रेन के साथ एसिटाइलकोलिन रिलीज होगी। ये एक नॉर्मल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे आपको सेकंड पिक्चर में ये बताया हुआ है कि एक्चुअली जो बोtulinum टॉक्सिन है वो क्या कर रही है, वो ब्लॉक कर रही है एसिटाइलकोलिन की रिलीज को। ठीक है, तो ये वेजाइकल्स यहाँ पे फ्यूज नहीं हो रहे हैं आके एनाफिक टर्मिनल पे, उसकी बजाय ये एसिटाइलकोलिन रिलीज ही नहीं होगी। तो अब इस सूरत में आपके पास क्या केस बनेगा? इस सूरत में ये बनेगा कि ये जो इनहिबिटरी ट्रांसमीटर्स थे वो ज्यादा रिलीज होते जाएंगे, एक्सेक्रेटरी ट्रांसमीटर्स होंगे नहीं रिलीज, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, मसला रिलैक्स स्टेट में रहेंगे और कंट्रैक्शन में नहीं जाएंगे। ठीक है, so botulinum toxin is absorbed into the bloodstream and it leaves the circulatory system at a point where neuron joins the muscle, यानी कि neuromuscular junction पे। And this toxin, it prevents the fusion of synaptic vesicles of the acetylcholine. There is no release of acetylcholine at the neuromuscular junction with consequent paralysis of the muscle fiber। ठीक है, so आगे जाके हम एक दोनों का कंपैरिजन भी पढ़ेंगे। अच्छा, एक टर्म आपने सुनी होगी बोटॉक्स। So Botox क्या चीज होती है? Botox is basically a commercial preparation of the toxin of Clostridium botulinum। और कौन सी टॉक्सिन है? एक्सोटॉक्सिन ए। इट इज यूज्ड टू रिमूव रिंकल्स ऑन द फेस। ठीक है, सो इसका जो है बहुत ज्यादा रोल है हमारी जो इंडस्ट्री है, और इसमें जो फिल्म इंडस्ट्री है, मॉडल्स, अब तो कॉमन पीपल में भी बहुत ज्यादा इसका यूज
ठीक है, ओके। सो कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें इसको यूज किया जा सकता है, वो आप देख सकते हैं कि सबसे पहली पिक्चर में आपको ये पता चल रहा है रिंकल्स के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक कंडीशन होती है ब्लेफरोस्पाज्म, ठीक है, जिसमें कुछ आई मसल्स में स्पाज्मोटिक कंट्रैक्शंस हो जाते हैं, तो उनके ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। देन सेंटर वाली पिक्चर में आप देख सकते हैं दिस इज राइटर्स क्रैम्प, ठीक है, इस पेशेंट में, इन पेशेंट्स में यूज कर सकते हैं इसकी कुछ क्वांटिटी। और लास्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं टॉर्टिकोलिस का वर्ड एक लिखा हुआ है। तो टॉर्टिकोलिस में क्या है कि जो नेक मसल्स है ना वो स्टिफ हो जाते हैं एक साइड पे, कि दूसरी साइड पे उसको रोटेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इन पेशेंट्स में ट्रीटमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं जिनमें बहुत ज्यादा स्पाज्मोटिक मसल कंट्रैक्शंस होती हैं, इनको ट्रीट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, सो ये वो डायग्राम है जिसमें आपको दोनों का कंपैरिजन बताया, बोtulinum टॉक्सिन और टेटनस टॉक्सिन, ठीक है। ये कंपैरिजन पे आप याद रखेंगे, आपको बहुत इजी हो जाएगा रिमेंबर करना। बोtulinum टॉक्सिन क्या करिए, फ्लैसिड पैरालिसिस कॉज करिए, ठीक है। फ्लैसिड पैरालिसिस का क्या मतलब है कि कंट्रैक्शन नहीं हो रही, मसल्स रिलैक्स है, ठीक है, फ्लॉपी है पेशेंट, स्टॉप्स द मसल्स कंट्रैक्शन, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, बोtulinum टॉक्सिन ब्लॉक्स द रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन स्टॉपिंग द मसल कंट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पी सिनैप्टिक टर्मिनल पे यहाँ पे इन्होंने ये समर उसकी टॉक्सिन के जरिए से ब्लॉकेज शो की, ठीक है। Okay, what about the tetanus toxin now? Tetanus toxin prevents the release of glycine and GABA, which prevents the relaxation of muscle. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है ये एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर जो है वो बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है, जैसे कि जो कि एसिटाइलकोलिन है, इसकी वजह से मसल्स जो है वो स्पाज्म में जा रहे हैं, स्पास्टिक पैरालिसिस हो रही है, ठीक है। और जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर थे जो कि गाबा और ग्लाइसिन थे वो रिलीज नहीं हो रहे, एक में एसिटाइलकोलिन की रिलीज ब्लॉक हुई थी एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर की, और एक में गाबा और ग्लाइसिन की रिलीज यानी इनहिबिटरी ट्रांसमीटर की रिलीज ब्लॉक हुई। ओके, सो क्लिनिकल फीचर्स क्या आते हैं बोtulinum टॉक्सिन की एक्शन से, देयर इज डिसेंडिंग वीकनेस, पैरालिसिस इंक्लूडिंग डिप्लोपिया। डिप्लोपिया क्या होता है बच्चों, इट इज डबल वीएन, ठीक है। देन डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन swallowing एंड रेस्पिरेटरी मसल फेलियर, ठीक है। फीवर नहीं होता है इन पेशेंट्स में, कंपेरेबल टू सम अदर कंडीशंस जिनमें इसी तरह से डिसेंडिंग पैरालिसिस हो सकती है, लेकिन उसमें इतना फीवर फीवर नहीं होता। अच्छा, इसमें दो स्पेशल क्लिनिकल फॉर्म्स हैं जो कि कॉमनली देखी जाती है। एक वूंड बॉटुलिज्म है, इसमें क्या होता है कि कोई वूंड है और बॉटुलिज्म की क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म की स्पोर्स इसी तरह से इस वूंड के अंदर एंटर हो गए हैं सॉइल से, ठीक है। दे कंटामिनेट द वूंड, दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस द टॉक्सिन एट द साइट, और बाकी के सिम्टम्स उसके वैसे ही होंगे, डबल वीएन होगी, डिस्फेजिया होगा, रेस्पिरेटरी मसल फेलियर होगा, डिसेंडिंग पैरालिसिस होगा, ठीक है। पेशेंट वुड बी फ्लॉपी, फ्लैसिड पैरालिसिस होती है। सेकेंड कंडीशन क्या है, इन्फेंट बॉटुलिज्म। इन्फेंट बॉटुलिज्म क्या होती है, इन विच द ऑर्गेनिजम्स ग्रो इन द गट एंड प्रोड्यूस द टॉक्सिन गैस। अच्छा, अब जो इन्फेंट बॉटुलिज्म है वो कॉमनली जो उसका मोस्ट कॉमन सोर्स है वो क्या है, रॉ हनी। जैसे कि बेबीज में आपने सुना होगा कि बच्चों को घुट्टी दी जाती है, उसके लिए हनी यूज किया जाता है। तो अगर वो हनी रॉ है और उसमें किसी वजह से क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम की स्पोर्स एंटर हो गए हैं, तो फिर ये इस बच्चे के लिए जो है ये कंडीशन सीरियस भी हो सकती है। So ingestion of the honey containing the organism is implicated in transmission of infant botulism, ठीक है। तो अगर इसका क्लिनिकल सिनेरियो आएगा लेट से आपको, तो वो इसी किस्म का बनेगा जिसमें एक बेबी है जिसको हनी से फीड किया गया है और उसमें ये सिम्टम्स मिलते हैं। Affected infants they develop weakness or paralysis and they may need the respiratory support but usually recover spontaneously। मगर इसमें usually लिखा है, ठीक है, हमेशा नहीं लिखा, इसमें लिखा है अक्सर, ठीक है, अमूमन कर जाते हैं रिकवर, बट नॉट नेसेसरीली कि बच्चा रिकवर कर जाए। एंड ही माइट नीड रेस्पिरेटरी सपोर्ट, अगर उसकी कंडीशन इतनी वर्स हो गई है कि वो रेस्पिरेटरी सपोर्ट पे है तो जरूरी नहीं है कि वो रिकवर करे, ठीक है। वूंड बॉटुलिज्म इज एसोसिएटेड विद ड्रग अब्यूज, ठीक है, स्पेशली द स्किन पॉपिंग विद ब्लैक tar hair, ठीक है। जो अभी क्लोस्ट्रीडियम में बहुत ज्यादा जिक्र आ रहा है ड्रग एडिक्ट्स का।
सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हाइपोटोनिया या डिक्रीज मसल टोन है, ठीक है। ये दिस इज अ फ्लॉपी बेबी जिसमें फ्लैसिड पैरालिसिस है, मसल्स उसके इतने ज्यादा रिलैक्स हुए हैं, ठीक है, मसल कंट्रैक्शन नहीं हो रही है, मसल्स आर जनरली रिलैक्स्ड। एंड इसके साथ अगर आप अपने माइंड में लेके आए वो पिक्चर जो हमने टेटनस में देखी थी जिसमें आर्चिंग ऑफ बैक हो रही थी, ठीक है, उसमें आपने देखा था मसल्स इतने ज्यादा स्ट्रिप हो गए हैं कि उसकी बैक स्ट्रेट नहीं हो सकती, ठीक है, और यहाँ पे मसल्स इतने ज्यादा रिलैक्स हो गए हैं कि ये बेबी बिल्कुल फ्लॉपी हो गया। ओके, सेकंड पिक्चर शोज द ड्रग एडिक्ट थिंग, ठीक है, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि इसके जरिए से भी ऑल्दो उसमें स्किन पॉपिंग का वर्ड यूज हुआ हुआ है, आईवी ड्रग एब्यूजर करें। ओके, सो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, इसमें बोtulinum टॉक्सिन जो है ये जो क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum है इसको हम माइक्रोबायोलॉजी लैब में कल्चर नहीं कर सकते, जिस तरह से हमने क्लोस्ट्रीडियम टेटिनाई के बारे में पढ़ा था। ऑल्दो इसकी जो टॉक्सिन है इट इज डेमोन्स्ट्रेबल इन अनईटन फूड, ठीक है, तो अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि किसी पेशेंट की ये कंडीशन इस प्रॉपर मतलब इस खाने की वजह से हुई है, तो हम उस फूड को जो रिमेनिंग फूड है उसको हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड द पेशेंट सीरम बाय माउस प्रोटेक्शन टेस्ट, तो माउस प्रोटेक्शन टेस्ट में क्या है कि माइस जो है उनको इनोकुलेट किया जाता है उसी सैंपल ऑफ फूड से, ठीक है, एंड उसी सैंपल से जो पेशेंट से सैंपल लिया गया है उससे हम इनोकुलेट करते हैं, और अगर उसके अंदर ये टॉक्सिन प्रेजेंट होगी तो द माइस विल डाई अनलेस हम उनको एंटी टॉक्सिन ना लगाएं, ठीक है। ओके, सो अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, अगर किसी पेशेंट में ये डिजीज आइडेंटिफाई हो जाती है तो उसमें ट्राइवेलेंट एंटीटॉक्सिन यूज की जाती है, जिसमें टाइप ए, बी और ई है, जो कि तीनों ह्यूमन डिजीजेस में कॉमनली प्रेजेंट होती हैं अलोंग विद रेस्पिरेटरी सपोर्ट, ठीक है। और इसकी एंटीटॉक्सिन जो है वो अमूमन हॉर्सेस में बनाई जाती है, और सीरम सिकनेस इन पेशेंट्स में 3% तक देखी गई है। तो सीरम सिकनेस क्या होती है, समटाइम्स जो एंटीटॉक्सिन जो है ना वो एनिमल्स में बनाई जाती है, उसमें ये होता है कि जब आप उसको ह्यूमंस में इंजेक्ट करते हो तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। इसकी डिटेल्स हम जब हम इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें एंटीटॉक्सिन प्रिपेयर करते हुए आप ह्यूमंस में प्रिपेयर कर लेते हैं ताकि सीरम सिकनेस के चांसेस कम से कम हो। अदरवाइज अगर एनिमल्स में प्रिपेयर की जाए एंटीटॉक्सिन तो उसमें सीरम सिकनेस या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के चांसेस ज्यादा। Then prevention, proper study canned and vacuum packed food is essential and food must be adequately cooked to inactivate the toxin, ठीक है। दो चीजें आपने देखनी कि यानी अगर आपने किसी भी किस्म के फूड को कैन करना है या प्रिजर्व करना है तो उसमें आपको प्रॉपर मेजर्स लेने की जरूरत है। सेकेंडली ये कि कोशिश करें कि जो कैन फूड है उसमें से भी जो चीजें रॉ यूज मतलब चीजें रॉ यूज ना की जाए, जैसे मशरूम्स है, बीन्स है, अगर आप उनको थोड़ा सा कुक कर लें तो ये जो टॉक्सिन है वो इनएक्टिवेट हो जाती है। स्वोलन कैंस मस्ट बी डिस्कार्डेड, या क्यों स्वोलन कैंस कैसे स्वोलन हो जाते हैं, जो क्लोस्ट्रीडियम प्रोटीयोलिटिक एंजाइम्स हैं दे प्रोड्यूस गैस, ठीक है, जो जिसकी वजह से ये कैंस स्वेल अप हो जाते हैं। तो ये एक निशानी होती है कि जो भी कंपोनेंट है इस कैन के अंदर इट इज नाउ नॉट इन अ गुड स्टेट टू बी कंज्यूम्ड, ठीक है। और समटाइम्स आप देखिए जो एक्सपायर्ड कैंस होते हैं वो भी इसी तरह स्वेल अप हो जाते हैं, ठीक है, बट समटाइम्स जो अभी एक्सपायरी डेट नहीं होती किसी कैन की मगर स्टिल वो स्वेल अप हो जाता है, तो दैट मीन्स कि उसके अंदर टॉक्सिन प्रेजेंट है। Next is Clostridium perfringens. So far we have covered two Clostridia, and this is the third one. Causes two distinct diseases, that is gas gangrene, जिसका दूसरा नाम मायोनेक्रोसिस भी है या नेक्रोटाइजिंग फेशियाटिस है, और इसके अलावा दूसरी जो डिजीज ये कॉज करता है दैट इज फूड पॉइजनिंग डिपेंडिंग ऑन द रूट ऑफ एंट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू द बॉडी, ठीक है। तो क्लोस्ट्रीडियम परफेंजेंस में आपने दो बातें याद रखनी है, नंबर वन इज द गैस गैंग्रीन, नंबर टू इज द फूड पॉइजनिंग, ठीक है। जैसे हमने क्लोस्ट्रीडियम टेटिनाई में पढ़ा वो टेटनस कॉज कर रहा है, क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum में हमने पढ़ा बोtulism कॉज कर रहा है, क्लोस्ट्रीडियम परफेंजेंस दो डिजीजेस कॉज कर रहा है, गैस गैंग्रीन और फूड पॉइजनिंग। Gas gangrene is also caused by other bacteria of Clostridium genus, ठीक है, जिसमें Clostridium histolyticum है, septicum है, noviae है, sordilii है, ठीक है। ये और भी आपकी बुक में लिखी हुई है, लेकिन हम इस वक्त Clostridium perfringens इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये कॉमनली इनकाउंटर किया जाता है। Clostridium sordilii it also causes the toxic shock syndrome in postpartum and post-abortion women.
ट्रांसमिशन इसकी कैसे है, जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था, क्लॉस्ट्रिडिया के स्पोर्स कहाँ लोकेटेड है, सॉइल में। वेजिटेटिव सेल्स आर द मेंबर्स ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द कोलन एंड वजाइना। तो इसमें से आपकी याद रखने वाली एक बात और ये है कि क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रेंजेंस और आगे हम पढ़ेंगे क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल, ठीक है, ये दोनों नॉर्मल फ्लोरा का कुछ ना कुछ कंपोनेंट बनाते हैं। तो क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रेंजेंस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कोलन में, लेकिन ये डिजीज कोलन में कॉज नहीं करता, ठीक है। Gas gangrene is associated with war wounds, ठीक, ऑटोमोबाइल एंड मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स एंड सेप्टिक एबॉर्शंस। तो अब ये जो चीजें हैं, इसमें से जब भी आपको ट्रांसमिशन बताई जाती है किसी भी डिजीज की, तो बेसिकली ये आपको बताया जाता है कि इसका केस सिनेरियो आपको किस किस तरह का आ सकता है। वॉर वूंड्स के बारे में आ सकता है, ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स के बारे में आ सकता है, क्लॉस्ट्रिडियम टेटिनाई का भी इसी तरह का सिनेरियो आ सकता है, जिसमें ऑटोमोबाइल वूंड्स हो सकते हैं, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की कोई बात हो सकती है, या रस्टी नेल की पेनिट्रेशन हो सकती है इनटू द स्किन, ठीक है। और इसी तरह क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रेंजेंस में भी मिलता जुलता सिनेरियो है, जिसमें ऑटोमोबाइल मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स हैं, जिसमें ओपन वुंड्स हैं, और इसमें भी रस्टी नेल पेनिट्रेशन इंक्लूड हो सकती है। इसके अलावा सेप्टिक एबॉर्शंस है। अब आप इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ठीक है, ये मैं आपको क्लिनिकल फीचर्स जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि आपने एक जैसे सिनेरियो में से कैसे पिकअप करना है कि ये क्लॉस्ट्रिडियम टेटिनाई का सिनेरियो है या क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रेंजेंस का। Okay, so it produces alpha toxin which causes the tissue destruction with the production of gas. Okay, this is the most important feature here, production of gas. Okay, and it causes the food poisoning by enterotoxin. Pathogenesis, organisms they grow in the traumatized tissue, especially the muscles. अब यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों कि क्लॉस्ट्रिडियम टेटिनाई से इसका सिनेरियो कैसे डिफरेंट होगा। वहाँ पे क्या था, ओपन वूंड था जिससे स्पोर्स एंटर हो गए बॉडी के अंदर। अब उन्होंने कहाँ जाके एक्ट करना है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, ठीक है, पैरालिसिस कॉज करना है, स्पास्मोटिक मसल कंट्रैक्शंस, ठीक है, और स्पास्टिक पैरालिसिस हो जाएगी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑर्गेनिज्म जो ट्रॉमेटाइज टिश्यू भी ग्रो कर रहे हैं, अल्फा टॉक्सिन क्या करेगी, सेल मेम्ब्रेन्स डैमेज करेगी, इंक्लूडिंग दोज ऑफ द एरिथ्रोसाइट्स रिजल्टिंग इन हेमोलिसिस। और जो डिग्रेडेटिव एंजाइम्स हैं इसके, वो हमेशा टिश्यू में गैस प्रोड्यूस करेंगे। तो जब भी कभी आपको कोई ऐसा क्लिनिकल सिनेरियो आए जिसमें क्रेपिटस या गैस का जिक्र हो इन द टिश्यू, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो यहाँ पे जो बैक्टीरियम इन्वॉल्व है दैट इज डेफिनेटली क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रेंजेंस। गैस इन टिश्यू की जब भी बात आएगी, क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रेंजेंस का जिक्र होगा। ओके, गैस गैंग्रीन की जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स है, इसमें आपको क्या नजर आएगा, पेशेंट कंप्लेन करेगा पेन की, स्वेलिंग, सेलुलाइटिस यानी कि लोकल एरिया में रेडनिंग होगी, ठीक है, और गैंग्रीन के फीचर्स हो सकते हैं, निक्रोसिस हुआ नजर आएगा। निक्रोसिस में क्या होता है, वहां से स्किन ब्लैक टर्न हो जाती है वूंड एरिया में से, ठीक है, और क्रेपिटेशन, ठीक है, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ गैस इन द टिश्यू, ठीक है। ये आपकी सबसे ज्यादा याद रखने वाली जो इम्पोर्टेंट लाइन है इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स में, दैट इज द क्रेपिटेशन और गैस इन द टिश्यू। हेमोलिसिस और जॉन्डिस के फीचर्स कॉमन हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि ब्लड टिंज एक्सुडेट्स हो सकते हैं इस कंडीशन में, शॉक और इवन डेथ भी हो सकती है। इसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है, ठीक है। ये जो है ना, अगर ये इन्फेक्शन कंट्रोल ना हो तो आपको पेशेंट की एम्पुटेशन करनी पड़ सकती है, ठीक है, और अगर आप नहीं करेंगे एम्पुटेशन तो डेफिनेटली जो टॉक्सिन है वो स्प्रेड कर जाएगी बॉडी में एंड इट मे लीड टू डेथ ऑफ द पेशेंट। गैस गैंग्रीन में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तो ये आपको गैशियस बुला नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये इटसेल्फ की स्वेलिंग है, ठीक है, जिसके अंदर गैस ट्रैप है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर केस में आपको ये भी नजर आए। ओके, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि इसकी बेसिकली सेकंड, थर्ड और फोर्थ 3 फिंगर्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें से ये जो फिंगर है टो है थर्ड नंबर की, इसमें आपको ब्लैकनिंग नजर आ रही है जो कि क्लियर साइन है निक्रोसिस का, ठीक है। इसके अलावा इसकी फोर्थ पे स्वेलिंग भी है, इसकी ये टोज भी स्वेल अप हुई हुई है, ठीक है, और मे बी इसमें भी आपको क्रेपिटस नजर आए। Okay, so lab diagnosis, smears of the tissue and exudate samples they show large gram positive rods, ठीक है। इन पेशेंट्स का आप सैंपल जो है वो लेके लैब में इसको चेक कर सकते हैं। Spores are usually not seen by, again spores are present in the areas where the nutrients are deficient, ठीक है। तो इस डेड नेक्रोटिक टिश्यू में डेफिनेटली इन बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए अच्छा एक मीडियम ऑलरेडी प्रेजेंट है।
ठीक है, तो यहाँ पे स्पोर्स नहीं होंगे, यहाँ पे वेजिटेटिव सेल्स होंगे। द ऑर्गेनिजम्स आर कल्चर्ड एनारोबिकली एंड देन आइडेंटिफाइड बाय शुगर फर्मेंटेशन रिएक्शंस एंड ऑर्गेनिक एसिड प्रोडक्शन। ठीक है, तो इनके कंडीशन में आप एनारोबिक कल्चर्स इनके लिए कर सकते हैं। Clostridium perfringens colonies they exhibit a double zone of hemolysis on the blood agar। ठीक है, इसमें भी आपने याद रखना है डबल जोन ऑफ हेमोलिसिस ऑन द ब्लड एगर। इसके अलावा इसके लिए जो मीडियम यूज होता है दैट इज एग योक एगर। इट इज यूज्ड टू डेमोंस्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ लेसिथिनेज एंजाइम। लेसिथिनेज एंजाइम जो कि इस बैक्टीरिया में स्पेसिफिकली प्रेजेंट होता है। अल्फा टॉक्सिन का दूसरा नाम लेसिथिनेज है। ठीक है, सेरोलॉजिकल टेस्ट आर यूजुअली नॉट यूजफुल, यानी कि एंटीबॉडीज को हम इसके लिए यूज नहीं करते। Penicillin G is the antibiotic of choice for the treatment and prevention. Wound should be cleansed and debrided। ठीक है, ये इसमें आपको बताया था कि जब भी कोई इस तरह का wound होगा हमेशा उस wound को properly clean करना है, debride करना है, dead tissue remove करना है। ठीक है, फिर antibiotic administer करनी है और इसकी कोई भी vaccination नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी जो फूड पॉइजनिंग है। ठीक है, फूड पॉइजनिंग कैसे कॉज होती है? क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस की स्पोर्स जो है सॉइल में लोकेटेड है, दे कैन कंटामिनेट द फूड एंड हीट रेजिस्टेंट स्पोर्स दे सर्वाइव कुकिंग एंड स्टिल दे जर्मिनेट। द ऑर्गेनिजम्स ग्रो टू लार्ज नंबर्स इन प्रीहीटेड फूड स्पेशली द मीट डिशेस। ठीक है, तो इसमें आपको एक चीज जो डिफरेंट है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम से, उसमें हमने कहा था कि वो टॉक्सिन जो है वो हीट रेजिस्टेंट नहीं है और इवन थोड़ी देर के लिए बॉईल करने से या कुक करने से वो टॉक्सिन डिसेबल हो जाती है। लेकिन यहाँ पे इसकी जो टॉक्सिन है क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजिन्स की, ये इतनी जल्दी डिसेबल नहीं होती है। ठीक है, ओके। पैथोजेनेसिस में क्या है? इट इज अ मेंबर ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द कोलन बट नॉट इन द स्मॉल बाउल वेयर द एंटेरोटॉक्सिन एक्ट्स टू कॉज द डायरिया। तो ये कोलन का नॉर्मल फ्लोरा है और ये डिजीज कॉज करता है कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और इसकी जो एंटेरोटॉक्सिन है इट इज अ सुपर एंटीजन। तो सुपर एंटीजन हमने स्टेप्टोकोकस से स्टार्ट किया था पढ़ना, तो मेरा ख्याल है कि हमें एक लिस्ट अपने माइंड में बनानी चाहिए कि कौन कौन सी बैक्टीरिया हैं जिनकी टॉक्सिन जो है वो एज सुपर एंटीजन बिहेव करती है। ठीक है, ये मैं आपसे किसी वक्त पूछूंगी कि सुपर एंटीजन वाले आपने कितने बैक्टीरिया पढ़े हैं, उन सबके नाम बताएं। ओके, क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या है? डिजीज हैज 8 to 16 hour incubation period। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय watery diarrhea and cramps with little vomiting dissolving in 24 hours। ठीक है, तो इसमें क्या है? तकरीबन 8 से 16 घंटे मील के बाद पेशेंट में इसके सिम्टम्स जाहिर होंगे, वाटरी डायरिया होगा। ठीक है, वॉमिटिंग कम होती है, 24 घंटे में अमूमन रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो है क्या आपको क्या चीजें बताएंगे। नॉर्मल फ्लोरा तो ये है ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन इस एरिया का नहीं है जहाँ पे डिजीज कॉज कर रहा है। सो ये फूड के जरिए से एंटर होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपने देखा कि इसे टेक ओवर कर लिया है और टॉक्सिन अपने प्रोड्यूस करती है और इस टॉक्सिन ने एक्सटेंसिव लेवल पे टिश्यू निक्रोसिस प्रोड्यूस कर दिया है। ये सेलुलर डैमेज हो गया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्रॉपरली सेल्स भी नजर नहीं आ रहे क्योंकि वो सब डिस्ट्रक्ट हो चुके हैं। इसके लैब डायग्नोसिस में एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखनी है, इट इज अ नेगलर्स रिएक्शन। ये आपके बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन जस्ट इन वन लाइन आप इसको याद रखेंगे। क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस का नाम याद रखें, नेगलर्स रिएक्शन पॉजिटिव याद रखें। इसमें होता क्या है कि इट प्रोड्यूसेस ओपेसिटी इन द मीडियम कंटेनिंग लेसिथिन। ठीक है, क्योंकि इसके पास लेसिथिनेज एंजाइम है। ठीक है, जो कि अल्फा टॉक्सिन का दूसरा नाम है लेसिथिनेज एंजाइम। ठीक है, और ये ओपेसिटी जो है ये इनहिबिट हो सकती है बाय अप्लाइंग द एंटीटॉक्सिन टू हाफ ऑफ द प्लेट। यहाँ पे हाफ प्लेट में एंटीटॉक्सिन हमने लगाई हुई है तो यहाँ पे उसको इनहिबिट कर दिया है और यहाँ पे ये ओपेसिटी है। दिस इज द व्हाइट कलर शोन जो कि बाहर हो रहा है। और बेसिकली मीडियम के अंदर क्या था? लेसिथिन, और लेसिथिनेज एंजाइम ने उसको ब्रेक डाउन करके यहाँ पे ओपेसिटी प्रोड्यूस करती है। और इसको काउंटर चेक हमने कैसे किया? एंटीटॉक्सिन मीडियम में एडमिनिस्टर की है तो यहाँ पे इस एरिया से ओपेसिटी गायब हो गई है। ठीक है, बस टेस्ट का नाम याद रख लिया, नेगलर रिएक्शन। ज्यादा एमसीक्यू में कभी पूछा जा सकता है, मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी डिटेल नहीं पूछी जाती। नेगलर रिएक्शन से आपको जनरली एमसीक्यू आ सकता है कि दिस रिएक्शन इज पॉजिटिव फॉर व्हिच बैक्टीरियम? क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस। ट्रीटमेंट क्या है? सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, नो एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स आर गिवन। प्रिवेंशन में देयर आर नो स्पेसिफिक प्रिवेंशन मेजर्स एक्सेप्ट दैट द फूड शुड बी एडिक्वेटली कुक। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे प्रॉपर टाइम तक आप फूड को कुक करेंगे तब इस बैक्टीरियम से आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। देन
Clostridium difficile, which is the last bacterium which we are going to study today, but it is very very important. Okay, it causes antibiotic associated pseudomembrane colitis. तो इसमें क्या होता है, it is a life threatening condition जिसमें antibiotics जो broad spectrum antibiotics हैं over a long time period अगर वो किसी patient को दी जाए तो वो उसके normal flora को disrupt कर देती है, जिसकी वजह से ये एक pseudomembrane formation हो जाती है और इन patients में life threatening diarrhea हो जाता है. It is most commonly hospital acquired, ठीक है, most common nosocomial या hospital acquired cause of diarrhea. It is present in commensals in the Clostridium difficile जो है ये commensals या normal flora होती हैं intestine में, ठीक है. इनके spores oval होती हैं, terminal होते हैं. Enterotoxin जो है जो produce होती है वो diarrhea cause करती है और cytotoxin extensive टिश्यू डैमेज करती है. ट्रांसमिशन इसकी क्या है, ये ट्रांसमिट हो रहे हैं बेसिकली इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट. हमने कहा कि कुछ लोगों में तो जो नॉर्मल फ्लोरा होती है अप्रोक्सीमेटली 3% ऑफ द जनरल पॉपुलेशन हैज दिस नॉर्मल फ्लोरा इन द GIT एंड 30% ऑफ द हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट दे एक्वायर दिस बैक्टीरिया. Most people are not colonized, ठीक है, which explains why most people who take antibiotics they do not get the pseudomembrane colitis. बहुत कम लोगों में होता है लेकिन बहुत severe condition है. It is transmitted by the fecal oral route. The hands of the hospital personnel are important source. ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जब कभी भी आप हॉस्पिटल सेटिंग में काम कर रहे हैं, हर पेशेंट को डील करने से पहले आपके लिए हैंड वॉश करना क्यों जरूरी है, ग्लव्स चेंज करना क्यों जरूरी है, ताकि किसी भी वजह से कोई भी बैक्टीरिया या स्पोर ट्रांसमिट ना हो दूसरे पेशेंट को. एंटीबायोटिक्स सप्रेस द ड्रग सेंसिटिव मेंबर्स ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा. ठीक है, अब क्या होता है कि एंटीबायोटिक्स जो है वो ड्रग सेंसिटिव मेंबर्स को जो नॉर्मल फ्लोरा के हैं उनको वो सप्रेस कर देती हैं, जिसकी वजह से क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल को इतना चांस मिल जाता है कि ये मल्टीप्लाई करे और अपनी एक्सोटॉक्सिन A और B प्रोड्यूस करे. ठीक है, सो इसकी मिसाल हम ऐसे देते होते हैं जनरली कि अगर एक लेट्स से देयर इज अ सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, एक सोफा है जो जिस पे 2 लोग बैठे हैं तो डेफिनेटली वो रिलैक्स होकर बैठेंगे, फैल के बैठेंगे. लेकिन अगर उस जगह को पे आपको 8 लोगों को स्क्वीज करना पड़ जाए तो वहाँ पे वो अपनी अपनी जगह तक ही महदूद रह सकेंगे. ठीक है, तो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल चूंकि नॉर्मल फ्लोरा हैवी एंटीबायोटिक्स की वजह से यहाँ पे खत्म हो गया है एंड क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल इज द ओनली वन टू सर्वाइव, तो वो फुली फ्लरिश करेगा और वो टेक ओवर कर जाएगा. ठीक है, बोथ एक्सोटॉक्सिन A एंड एक्सोटॉक्सिन B आर ग्लूकोसिल ट्रांसफेरेसेस. ये क्या करती हैं, दे ऐड ग्लूकोज टू G प्रोटीन. ठीक है, और मेन इफेक्ट एक्सोटॉक्सिन B का क्या है कि इट कॉजेज डीपॉलीमराइजेशन ऑफ द एक्टिन, जिसकी वजह से साइटोस्केलेटल इंटीग्रिटी लॉस हो जाती है. क्योंकि सेल की अपीयरेंस डिफेक्टिव हो जाती है तो बॉडी के प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स एक्टिवेट हो जाते हैं. एपोप्टोसिस के जरिए उन सेल्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है और एंटेरोसाइट वहां से खत्म हो जाते हैं. ठीक है, ये डायग्राम आपको बता रही है, यहाँ पे आप देखें कि ये एंटीबायोटिक्स, ठीक है, हेवी एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्टर की गई हैं. उसके बाद यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल स्पोर जो है ये जर्मिनेट करके वेजिटेटिव सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा ओवर ग्रो कर जाते हैं, तो पूरी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं. ठीक है, उसके बाद इनकी जो है ना ये टॉक्सिन प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है जो कि साइटोस्केलेटल एब्नॉर्मैलिटीज क्रिएट करती है. सेल्स यहाँ से डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, एपोप्टोसिस के जरिए सेल्स एलिमिनेट होने शुरू हो जाते हैं और जो नॉर्मल साइटोस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल विलाई है वो लॉस हो गए हैं. दैट मीन्स कि जो नॉर्मल प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स का वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा और यहाँ पे वाटरी डायरिया होगा. दैट वुड बी एक्सेसिव एंड दैट वुड बी लाइफ थ्रेटनिंग. Which antibiotics can be associated? सबसे पहले क्लिंडामाइसिन आइडेंटिफाई हुई थी कि उसकी वजह से ये एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया कॉज हो जाता है. फिर थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन, इसलिए क्योंकि थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन सबसे कॉमनली यूज की जाती है. ज़रूरत हो या ना हो, हमारे यहाँ क्लिनिशियंस जो हैं वो हर पेशेंट को हैवी एंटीबायोटिक डोज पे लगा देते हैं. एम्पिसिलिन भी बहुत कॉमनली यूज होती हैं, फ्लोरोक्विनोनोल्स भी यूज होती हैं. इसके अलावा जो कैंसर कीमोथेरेपी के पेशेंट्स हैं उनमें भी सूडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस की कंडीशन हो सकती है. ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल रेयरली इन्वेड्स द इंटेस्टिनल म्यूकोजा. इसकी टॉक्सिन बेसिकली एक्ट कर रही है, खुद से इन्वेड नहीं कर रही है, बैक्टीरिया सेल के अंदर इन्वेड नहीं कर रही. There's so many of antibiotics.
अच्छा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद भी लगाते हैं, यस। ये टेटनस, मेरे ख्याल से आप टेटनस टॉक्साइड की बात कर रहे हैं, यस ये भी लगाते हैं। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद हमेशा टेटनस टॉक्साइड एडमिनिस्टर की जाती है, ठीक है। और डेलिसन सी आपने कहा, हाँ जी। लार्ज नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स, जो भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं और जो लंबे अरसे के लिए पेशेंट को दी जाती हैं, उनसे ये कंडीशन डेवलप हो सकती है, ठीक है। हर पेशेंट में नहीं होगी, ठीक है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में डेवलप हो सकती है। ओके, क्लिनिकल फाइंडिंग्स इसकी क्या है? क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल इट कॉजेज डायरिया एसोसिएटेड विद सूडो मेम्ब्रेन। अच्छा, अब ये सूडो मेम्ब्रेन कैसे बनती है? वहाँ पे हमने देखा कि जो सेल्स हैं, लोकल सेल्स, उनमें बहुत ज्यादा सेलुलर डिस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है। तो इस एरिया में जो एक्सुडेट्स होंगे वो वहाँ पे इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, उसके अंदर डेड सेल भी होगा, नेक्रोटिक टिश्यू भी होगा, और वो सब मिलके एक मेम्ब्रेन बना देते हैं, ठीक है। जो इंटेस्टाइन के अंदर उस जगह जगह पे जहाँ पे इन्फेक्शन ज्यादा प्रेजेंट है, वहाँ पे एक सूडो मेम्ब्रेन या फॉल्स मेम्ब्रेन की फॉर्म में जमा हो जाते हैं। ये येलो व्हाइट फ्लैग्स की तरह नजर आते हैं इन द कोलोनिक म्यूकोसा, ठीक है। और इसको हम कैसे देख सकते हैं? जब हम इस पेशेंट की सिग्मोइडोस्कोपी या एंडोस्कोपी करेंगे तब हम देख सकते हैं। डायरिया इज यूजुअली नॉट एसोसिएटेड विद ब्लड एंड द न्यूट्रोफिल्स आर फाउंड इन द स्टूल इन अबाउट हाफ ऑफ द केसेस, ठीक है। फीवर और एब्डोमिनल पेन इसके साथ प्रेजेंट हो सकता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सूडो मेम्ब्रेन इज विजुअलाइज्ड बाय सिग्मोइडोस्कोपी, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए सिग्मोइडोस्कोपी से ये जो येलो फ्लैग्स बने हुए ना, दिस इज बेसिकली अ सूडो मेम्ब्रेन, जिसको रूटीन में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन ये इस कंडीशन की वजह से हर बार क्यों टेटनस लगाते हैं जब एक्सीडेंट होता है? एक बार काफी होता है जी। हर बार नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अगर पेशेंट का वैक्सीनेशन स्टेटस आपको पता है, उसको 5 इयर्स में, लास्ट 5 इयर्स में एक दफा टेटनस का इंजेक्शन लग चुका है, ओके। अच्छा, आई होप यू कैन हियर मी वेल। सो लैब डायग्नोसिस क्या है? क्लिनिकल सैंपल्स में हम क्लोस्ट्रिडियम डिफिसाइल के लिए कैसे चेक करते हैं? स्टूल में हमने टॉक्सिन को डिटेक्ट करना होता है, ठीक है। हर पेशेंट जिसको एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया हो, उसमें जरूरी नहीं है कि क्लोस्ट्रिडियम डिफिसाइल इन्वॉल्व हो। अगर इसकी टॉक्सिन स्टूल में प्रेजेंट नहीं है तो फिर हम इसको क्लोस्ट्रिडियम डिफिसाइल का या सूडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस हम इसको लेबल नहीं करेंगे। स्टूल में टॉक्सिन कैसे चेक कर सकते हैं? नंबर 1 एलाइजा हो सकता है, नॉन एंटीबॉडी की जा सकती है टू द एक्सोटॉक्सिन। सेकंड क्या है? साइटोटॉक्सिसिटी टेस्ट है, जिसमें ह्यूमन सेल्स को हम कल्चर में लेके ये जो एक्सोटॉक्सिन है, इससे हम स्टूल, इससे हम इसको एक्सपोज करते हैं। अगर वो ह्यूमन सेल्स जो है ना वो किल होना शुरू हो जाए उस सेल कल्चर के अंदर, दैट मींस स्टूल के अंदर वो टॉक्सिन प्रेजेंट थी जिसने इनको किल कर दिया, ठीक है। दिस टेस्ट इज मोर स्पेसिफिक। अच्छा, अब हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? साइटोटॉक्सिसिटी कॉज बाय एक्सोटॉक्सिन एंड कॉज बाय वायरस, इन दोनों को कैसे हम करते हैं? अगर इस टॉक्सिन की जो एंटीटॉक्सिन है उससे साइटोटॉक्सिक इफेक्ट खत्म हो रहा है, दैट मींस कि वो न्यूट्रलाइज हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसी बैक्टीरियम की टॉक्सिन थी, वायरस की नहीं थी, ठीक है। पीसीआर भी कर सकते हैं फॉर द प्रेजेंस ऑफ द टॉक्सिजीन डीएनए, ओके। तो लास्ट इज प्रिवेंशन, ठीक है। नो प्रिवेंटिव वैक्सीन और ड्रग्स आर प्रेजेंट। आपने जब भी एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करनी है, आप हमेशा सिर्फ इसी कंडीशन में प्रिस्क्राइब करेंगे जहां बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा अगर आप हॉस्पिटल सेटअप में काम कर रहे हैं तो आपको इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोसीजर्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, हैंड वॉशिंग फ्रीक्वेंट होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा प्रोबायोटिक्स में क्या होता है? समटाइम्स ये नॉर्मल फ्लोरा की ही प्रिपरेशन होती है, फॉर एग्जांपल लैक्टोबैसिलस है, बाइफिडोबैक्टीरियम है, यीस्ट हो सकती हैं, सैक्रोमाइसिस, ठीक है। इनको यूज किया जा सकता है टू प्रिवेंट द सूडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस। बेसिकली ये क्या करते हैं कि नॉर्मल फ्लोरा जो है ना, ये इसको मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो अगर जो नॉर्मल फ्लोरा है वो मेंटेन होगा तो क्लोस्ट्रिडियम डिफिसाइल को ओवर ग्रोथ का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, सो इन द लास्ट फ्यू मिनट्स आई वुड लाइक टू शेयर अ फ्यू डायग्राम्स, पिक्चर्स, जिनमें आपको कई चीजें रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ रस्टी नेल पेनिट्रेशन में हमने क्या डिस्कस किया था? कौन कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो सकते हैं? कोई आंसर करेगा इसको? हाँ जी, anybody who would like to answer, please write it down, या फिर मैं खुद ही बता दूं। यस, इट कैन बी क्लॉस्ट्रिडियम टेटेनाई, गुड। और दूसरा बैक्टीरियम कौन सा था क्लॉस्ट्रिडियम टेटेनाई के अलावा, जो रस्टी नेल पेनिट्रेशन ऑफ स्किन से इंफेक्शन कॉज कर सकता है?
Okay, so the second one is Clostridium perfringens. ठीक है, इसके दो आंसर्स हैं. Which bacterium can cause disease in this condition? Number 1 Clostridium tetani, number 2 Clostridium perfringens. ठीक है, दो बैक्टीरिया हैं. ठीक है, this is just brainstorming. Okay, what is this? Anybody who would like to play this game? What does this picture show you? One or two words to describe. Can you? Nobody? इसका मतलब है आपने कुछ भी नहीं समझा लेक्चर में से. Yes, it is a lockjaw. Very good. Lockjaw किस में होता है? हाँ जी, क्यूट लग रहा है. रोड एक्सीडेंट में नहीं होता बच्चों. किस बैक्टीरियम के इन्फेक्शन में होता है? हाँ जी, लॉकजॉ कौन से क्लोस्ट्रीडियम के इन्फेक्शन में होता है? टेटनस. ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई. वेरी गुड. नो नो, दिस इज नॉट बॉटुलिनम. लॉकजॉ नहीं होता उसमें. ठीक है, क्यों नहीं है ये क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिनम? आप देखें, एक तो इसमें ये टिपिकल किस्म की इसकी ग्राइमेस है. ठीक है, जिसको हमने कहा था राइजस सार्डोनिकस. ठीक है, फिर इसके हाथ में रस्टी नेल्स हैं. ठीक है, और जो थर्ड थिंग है, क्या आपको मसल स्टिफनिंग नहीं लग रही? थोड़ी थोड़ी मुझे तो लग रही है. ठीक है, सो दिस इज क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई. ओके, नेक्स्ट पिक्चर. हाँ जी, यहाँ पे क्या है? सो इट इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम जो कि रॉड शेप्ड है. ठीक है, एंड इट इज ट्राइंग टू ईट फ्लैश. ठीक है, और साइड पे क्या लिखा हुआ है? नो ऑक्सीजन. पिक्चर पे गौर कर लें थोड़ा सा. कौन सा बैक्टीरियम का इन्फेक्शन हो सकता है? We are left with only 2 minutes and still 2 pictures, I think. So we have to hurry up. जल्दी जल्दी. No, not botulinum. हाँ जी, फ्लैश ईटिंग है ना, ये देखें. एनारोबिक फ्लैश ईटिंग. हाँ जी, परफ्रेंजेंस. वेरी गुड. तहरीर मुमताज. वेरी गुड. ठीक है, और किसने कहा है ये? खंसा. ठीक है, आप दोनों ने सही आंसर किया है. गुड. अच्छा जी, चलें अब नेक्स्ट पिक्चर. हाँ जी, इसमें क्या है? ये स्पोर्स नजर आ रहे हैं सबको. सो दिस इज अ ग्राम पॉजिटिव रॉड विद समवट टर्मिनल स्पोर्स. ठीक है, आप कह सकते हैं. अच्छा, और ये क्या है? ये नॉर्मल फ्लोरा हो सकते हैं. तो ये कौन है जो ओवरग्रो करके नॉर्मल फ्लोरा को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं और डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहे हैं? दिस इज. सो वी आर आउट ऑफ टाइम. रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. तो मैं आपको खुद ही बता देती हूँ, दिस इज क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल. ठीक है, सो ओके, 2 पिक्चर्स आर लेफ्ट. वी विल डिस्कस देम टुमारो. कल मैं देखूंगी कि आप इस किस्म के टेस्ट में कितना पास हो सकते हैं. ठीक है, ओके. Yes, this is Clostridium difficile. Very good, Khansa Tariq. Okay, that's all for today's lecture. We are left with 2 pictures and we are going to discuss them tomorrow. Allah.